This road trip takes us to Dong Valley to watch the first sunrise of India and further explore the easternmost village, also called the first village of India, Kaho. We drive and ride on the easternmost road of India towards KB2 HQ to complete our exploration of the true east of India. The journey further continued towards the extreme remote northeast of India, the Dibang Wildlife Sanctuary, and the last northeastern settlement, Anini. With a hatchback and 2 motorcycles, we camped amidst the wild winds that almost tore our tents at Parshuram Kund by the banks of the Lohit River. Trekked at 3 am in the morning to watch the first sunrise of India, relaxed at the hot water springs amidst the eastern Himalayas, drove on the cliffhangers of northeast even at night, got our petrol tank busted in the middle of a jungle with no mobile network for miles, cooked at the most unusual places, bathed when nature offered us, and slept under the stars to end days. हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम वोलोंग। गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। दिस इज़ द व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब वोलोंग का PW से निकलते ही दिस इज़ द व्यू दैट यू गेट। और जैसे कि लास्ट ब्लॉग मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसे 6 ऐसे कॉटेजेस हैं, वहाँ पे देखो, और 5 कॉटेजेस यहाँ पे है, टोटल 6 नंबर ऑफ कॉटेजेस जो यहाँ पे GPS लोकेशन में डाल दूँगा क्योंकि गूगल मैप्स में ये सब है नहीं, ठीक है। और अगर आपको कैंपिंग करना है तो मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ। You see that bluish light blue color building behind me, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप टेंट पिच कर सकते हो, बिकॉज जैसे अबेंडन गवर्नमेंट बिल्डिंग कोई वहाँ पे रहता नहीं है, वहाँ पे भी टेंट पिच कर सकते हो। बाहर कहीं पे भी आप टेंट पिच कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू एट ऑल, क्योंकि अरुणाचल में यहाँ पे कैंपिंग एंड पिचिंग टेंट एट योर विल इज़, बस किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर पिच कर रहे हो तो उनसे परमिशन ले लो, आसपास के लोकल से ज़रा पूछ लो कि कहाँ पे पिच करना है, क्या करना है, ये सब पूछ लो, आराम से पिच करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे नीचे ही आपका वाटर वाटर स्प्रिंग है। और अब फिलहाल आप लोग जा रहे हैं काबो और किबिथु। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पीने का पानी भरने के लिए ये है इंतज़ाम, विच इज़ सो बैड। मतलब यहाँ पे 3000 रुपीज़ पर कॉटेज के लिए सिस्टम से रह रहे हो और पीने का पानी यहाँ से लेना पड़ता है। और पानी भरने के बाद बोतल में पानी कम और पौधे ज़्यादा आते हैं। ये अच्छा वाला है, अच्छा वाला पानी है। अच्छा, दूसरा वाला दिखाते हैं, पौधे ज़्यादा आते हैं। तो डू कैरी गुड ड्रिंकिंग वाटर, जियोलिन वगैरह साथ में रखना टू बी सेफ। हाँ, यहाँ पे देखो देखो, ये देखो, पानी कम और पौधा ज़्यादा है, तो पानी के हिसाब से थोड़ा सोच समझ के पीना। And a small little piece of info here, the building that you see to the left is actually homestay, which is around 25 kilometers away from Wolong. So in total, Wolong has a IB for staying there, you have a homestay at Wolong, and you also have the PWD guest house जहाँ पे हम लोग रह रहे थे. And apart from this, this is this 4th place in Wolong where you can stay. So actually the number of stay options in Wolong compared to the number of tourists that visit there is not less at all. So if you plan to go to Wolong, definitely there is a ride guide, there is a tour guide for this part of the country coming up very soon after this series. और हाँ, एक तो stay option मैं बताना ही भूल गया. If you are actually carrying a tent, you can pitch your tent anywhere in Wolong, but try to avoid the places that are near to the army camps and such, and try to avoid private buildings. You can actually come to this PWD guest house and pitch your tent at the abandoned government building that I showed you. तो हम लोग अभी जस्ट एक सीरीज व्यू पॉइंट पे रुके हुए हैं।
टुक ए फ्यू ड्रोन शॉट्स, 360 शॉट्स। मेरे पीछे वहाँ पे देखो मतलब नज़ारा थ्रू आउट दी होल रूट कैसा है। मेरे पीछे वहाँ पे दैट्स द लोहित रिवर, द वाटर इज़ क्रिस्टल क्लियर मैन। मतलब वो नीचे तीलम हॉट वाटर स्प्रिंग में जाएंगे। अभी 12 तो ऑलरेडी बज चुका है, तो हम लोग जल्दी से किबिथु HQ पहले कवर कर देते हैं और निकलते हैं काहो के लिए। पता नहीं दोनों जगह कवर कर पाएंगे या नहीं, लेकिन तिलम हॉट वाटर स्प्रिंग्स तो करना ही है यार। लग रहा है वी आर आउट ऑफ लक। थोड़ा दूर देखो वहाँ पे द रोड इज कम्प्लीटली क्लोज। सो देयर वाज दिस वन गाय इन द आर्मी और उसने काफ़ी हेल्प किया। मतलब दे आर सो फ्रेंडली मैन। गाड़ी हम लोगों को पास होने को दे रहा है। हमारे सामने अब जो जगह देख रहे हो दिस इज करोटी। तो करोटी से एक ब्रिज निकलता है एंड दैट ब्रिज टेक्स यू टुवर्ड्स काहो एंड किबिथु। काहो विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ द लोहित रिवर एंड किबिथु विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लोहित रिवर। चलो देखते हैं और पहले किबिथु चलते हैं। लास्ट आर्मी हेडक्वार्टर्स, लास्ट रोड्स ऑफ इंडिया। तो हम लोग किबिथु करीबन पहुंच चुके हैं 1 to 2 किलोमीटर्स अगर फ्रॉम किबिथु। दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट रोड ऑफ इंडिया। इसके आगे जाओगे तो चाइना ही है। एनीवेज दे डोंट अलाउ यू टू क्रॉस किबिथु HQ एंड गो टू द अदर साइड। सो अभी हम लोग किबिथु पहुंच के आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं इफ़ आई कैन शूट, बिकॉज आर्मी कैंप, आर्मी लोकेशंस ये सब में शूट करना नहीं चाहता। हवा काफ़ी तेज़ है और मेरे पीछे बोर्ड्स देखो, वेलकम टू किबिथु, स्टोरी 16, वेलकम टू किबिथु। So this is the last most point of the easternmost road of India जहाँ पे civilians allowed है। हम लोग गए थे, मतलब we took this road and went towards the camp, went towards the army where the army camp starts, और उसके आगे जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा civilians को। So यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे and if I show you that side, ये जो थर्ड माउंटेन है, थर्ड माउंटेन के ऊपर दैट प्लेस इज चाइना। सो यू कैन इवन सी चाइना, बट देन वो माउंटेन ही है, लोकेलिटी और बस्ती तो दिखता नहीं है। चलो चलते हैं वापस। बहुत देर बाद धूप निकली है, तो अभी हम लोग उस जंक्शन पे है जहाँ से अगर आप लेफ़्ट को जाओ वो दीछू है, लेफ़्ट को नीचे की तरफ जाओ वो दीछू है। अगर आप इधर जाओ, ये लेफ्ट मोस्ट वाला ऊपर की तरफ जाओ तो दैट्स टुवर्ड्स किबिथु। और इधर होता है क्रोटी बोल के एक जगह, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पॉइंट पे लिखा हुआ है, देखो, वेलकम टू द ईस्टर्न मोस्ट रोड ऑफ इंडिया आपको दिख रहा है। और
A milestone shows that इस तरफ है दिछु. That is not the last village. The last village is Kaho, which is actually on the other side of the Lohit river. ये लोहित रिवर यहाँ पे बीच में है. तो उसके उस साइड पे रोड जाता है. That takes you to Kaho. ठीक है, तो काहो हम लोग जाएंगे, that is for sure. और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है करोटी 2 किलोमीटर्स. सो करोटी इज द विलेज जहाँ से आप लेफ्ट लोगे तो जा रहे हो किबिथु की तरफ, दैट इज दिस प्लेस. और अगर आप राइट लोगे तो जा रहे हो काहो की तरफ. दैट इज द लास्ट ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया. एक फोटो हो जाए. In the next episode, we finally reach the extreme east of India to Kaho, the first village of our country, and spend some wonderful time at the majestic Karoti Bridge. None of them are on Google Maps, so keep and watch on the upcoming tour guide with precise GPS locations. The day ends with a party at the Tilam Hot Water Springs while we watch the sunset beyond the snow-capped mountains.